Okay, so yesterday we were discussing this thing that actually suppose in case of microkernel, if we put the main things inside the kernel, it will make kernel more efficient. Okay, the kernel becomes efficient, but these services become slow. They becomes flexible. कुछ भी चीज बाहर होगी तो they become flexible. Okay, but speed of the kernel will increase. The kernel will become efficient, but these application programs become slow on a microkernel like structure. Okay, but these means ये तो मैंने internal external command बता रहा था, तब बता दिया था. Now again we will discuss this structure of operating system afterwards in detail. Layered structure and microkernel, something we have discussed now. Now in our means this syllabus, actually we will discuss here these things. Okay, and types of OS also we will discuss afterwards, but I am taking now also in sequence of notes something about multiprogramming. Okay, I am taking, and then we will today itself we will discuss the concept of multiprogramming also, and we will go to these topics also. Okay, the execution of system calls, operating system services, interrupt and system boot. Today we will try to finish this notes file. So multiprogramming, actually everybody, all of you knows the concept of multiprogramming, I think. Yes, sir. What is multiprogramming? Multiple processes are there in main memory. If single process is there, like in DOS, DOS is a single user, single process operating system. Single user, single process. Okay, operating system. But if multiple processes can be there in main memory, that is a multiprogramming OS. And why we switch to multiprogramming? To increase the device utilization, to increase the CPU utilization, as well as in memory we are keeping multiple processes simultaneously. Why we are keeping? To increase the device utilization, input output device utilization, and also the CPU utilization. Before the means when this concept came, अभी आपको ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता कि previously आपको पता होगा वैसे कि पहले कंप्यूटर्स जो है they are size of a they were size of a room. They built of vacuum tubes. Okay, vacuum tubes के जब थे तब तो they were size of a building, but after the invention of transistors, the computer fits in a room. Okay, and at that time they were non-interactive systems. Means non-interactive means the programmer gives his job to the operator executes it and give the output to the programmer. Okay, in a non-interactive manner. So at that time, actually, the IO devices were very slow as compared with the CPU. IO devices are very slow as compared with the CPU, because CPU is made up of transistors, and IO devices, they are means they are very slow. Punch cards and uh, means you can see the names of those IO devices that were used at that time. So they were also they are very slow as compared with the CPU. There is a great mismatch between the speed of IO devices and CPU. So in those non-interactive system, first of all, the concept of spooling came. Okay, spooling is simultaneous peripheral operation online. Okay, simultaneous
peripheral operation online. So in spooling, what happens, because IO devices were slow, so in spooling, actually one process is executing. Suppose P1 is executing on the CPU. So the operator has to execute, suppose P1 on the CPU. Okay, so it has loaded its input in the buffer, means from the input device, it will load its input in some fast buffer. Okay, and from there it will be given to the CPU, and CPU also gives the output to a buffer instead of directly on the output device. Okay, so in this case, what happens in case of spooling, why it is called simultaneous peripheral operation online, that suppose the CPU is executing job P2 currently, because its input is already there in the buffer, fast buffer, and it is executing this job P2 and it is producing its output in this buffer, output buffer. Okay, not directly on the output device. And P3, one process that has already been executed by the CPU. Okay, and its output is written in the buffer. It is now this output is given on the output device. Okay, and P1 is the next process that has to be executed after P2. Okay, so its input will be taken from the input device into the buffer. Means P2 input is already there in the buffer. It is executing by taking its input in from the buffer and it is producing its output in the buffer. And P3 output is there in the buffer. It is producing its output on the output device. And P1 process, it is producing its input in the buffer because it has to be next executed on the CPU. So all the peripherals, they are busy. Okay, so simultaneous peripheral operation online. This is the full form of you can say spooling. Okay, so this concept was there prior to multi-programming concept, but this spooling fails in efficient device utilization, CPU utilization as well as IO utilization if all the processes are CPU bound or all the processes are IO bound. So what are CPU bound processes, that this will again come, but I am telling you here that process consists of instructions. Okay, so if most of the instructions, they are CPU instructions, if most of the instructions are CPU instructions and after that some IO instruction is there, okay, then it is a CPU bound process. Means in CPU bound process, actually process does its IO between the execution. Okay, so if okay, sub processes does their IO between execution on the CPU. Okay, so if large amount of CPU burst duration is there, then it is a CPU bound process. Means, and then a IO burst is there. Okay, then again a longer CPU burst, means large number of CPU instructions, like scientific calculations if you are doing. Okay, so it is using the CPU more, then it is a CPU bound process. And IO bound process like database applications which uses the IO more. Okay, means they does computations very less in between the IO operations. Means this lower one is the IO burst and upper one is the CPU burst. So between subsequent IO operations, it does very less computations, IO bound process. So if suppose the processes are IO bound, if the processes are IO bound, then IO devices utilization will be proper, but CPU again becomes idle. CPU again becomes idle. Or if CPU bound process is there, then IO devices becomes idle. Because here in spooling, the simultaneous peripheral operation online is there, but process switching is not possible. Process is giving its input in the buffer prior to its execution, but its switching is not possible in between.
means when P2 is executing on the CPU. Okay, so if proper job mixing of CPU bound and IO bound processes is not there, then spooling fails. So in multi-programming, actually, process can switch from CPU can switch from one process to another process. Suppose one process is executing on the CPU. Suppose P1 is executing on the CPU. This Could you is explain this concept again one more time? which part? हाँ सर, ये इनपुट IO बाउंड और CPU बाउंड एक बार फिर से बता दीजिए, स्पूलिंग वो सब. Yes, sir. I didn't understand anything. I was unable to follow. Yes. Actually, these concepts are not, you can say they are not there in syllabus. You can say because it is history. I have written in the notes also that you have to refer some page number 9, 10 of 8th edition for reading spooling. You have to refer page number 910. Means it is not given in first, second chapter. It is given in some later chapter in history. Okay, so it is a history of operating systems. So in history, actually, why I'm telling you, you will appreciate after this lecture all these things, but it is a history. Okay, so मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में क्या होता था कि आईओ डिवाइसेस जो है बहुत स्लो थे एज कंपेयर्ड विद द सीपीयू, और सीपीयू उस टाइम एक प्रीसियस रिसोर्स था. आज की तरह सीपीयू इतना प्रीसियस रिसोर्स नहीं है अभी, उस समय काफी प्रीसियस रिसोर्स था. ठीक है, तो सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे कि आईओ डिवाइसेस अपना इनपुट डिवाइसेस P1 को एग्जीक्यूट होना है ना सीपीयू पे, तो P1 अपना इनपुट पहले ही बफर में रख देगा जिससे कि सीपीयू को डायरेक्टली इनपुट डिवाइस से ना लेना पड़े. और P2 एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू पे, तो P2 अपना इनपुट बफर से ले रहा है जो ये ऑलरेडी पहले रख चुका है बफर में, और अपना आउटपुट बफर में प्रोड्यूस कर रहा है. और P3 जो है ये अपना सीपीयू ने इसका आउटपुट ऑलरेडी बफर में लिख दिया. नाउ इट इज प्रिंटिंग ऑन द, इट इज टेकिंग इट ऑन द आउटपुट डिवाइस. ठीक है, तो ये अप्रिशिएट क्यों करोगे आप, वो आप बाद में इस पूरा कंसेप्ट के बाद में देखोगे कि स्पूलिंग अभी भी है. ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट चला गया. साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन अभी भी है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम टू make the devices utilize the devices more efficiently, first the concept of spooling was adopted. Okay, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होता था स्पूलिंग में कि अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेस होंगे, सीपीयू बाउंड प्रोसेस जिनमें सीपीयू बर्स्ट का ड्यूरेशन बहुत बड़ा है. सीपीयू बर्स्ट यानी इधर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस सीपीयू इंस्ट्रक्शंस है, ये आईओ इंस्ट्रक्शंस है जहां वो कोई आईओ डिवाइस यूज कर रहा है. ये सारे इंस्ट्रक्शंस सीपीयू इंस्ट्रक्शंस है, फिर कुछ आईओ डिवाइस यूज कर रहा है प्रोसेस. ठीक है, ये सारे तो ये सीपीयू बाउंड प्रोसेस का पिक्चर है. आईओ बाउंड प्रोसेस में क्या होता है, दे डू वेरी लिटिल कंप्यूटेशन इन बिटवीन देयर आईओ uses. They do very little computation in between their IO uses. This is a timing diagram, you can say, of a IO bound process, and this is CPU burst. This is CPU burst duration. CPU burst duration, and means CPU burst is of a longer interval in case of CPU bound process. It is very short in case of IO bound process. ठीक है, again this CPU bound IO bound will come in CPU scheduling chapter. Okay, Sir, so one small doubt, sir. yes. So this IO bound process is happening at the same time the CPU is doing that work? थोड़ा वापस बोलो बेटा. Sir, in the graphs you showed now, sir. So when the level is high, it's CPU bound, and when the level is low, it's IO bound, right? No, the level is low means this is the duration of the IO burst. Yes, sir. In the duration of the IO burst, the below graph is happening now, sir. Yeah. Okay. And this duration is same actually. Here
this, suppose this is 10 time units. So this is also 10 time units. This is also 10 time units. The duration is same for IO bus. IO bus duration is same for CPU bound, IO bound, both the processes. Okay. The difference is there in the CPU bus duration. For a CPU bound process, the CPU burst is of a longer duration. Rather, for a IO bound process, the length of CPU burst is for a shorter duration. Okay, sir. Okay. So, but this you will find these diagrams in CPU's process chapter or CPU scheduling chapter. If you see from the test book, you will find these figures in process chapter or CPU scheduling chapter. CPU bound process, IO bound process. Okay. But why I am telling you now that if proper means if all the processes are CPU bound in spooling, actually it will not happen. The efficient device utilization will not happen, because if all the processes they are IO CPU bound, then IO devices remains idle. If all the processes are IO bound, then CPU again remains idle, because switching is not possible from one process to another process. There are not multiple processes are not there in memory for simultaneous execution on the CPU. So after this spooling, the concept of multi-programming came for efficient device utilization. After spooling in non-interactive systems only, non-interactive systems में ही concept of multi-programming आ गया था. तो in concept of multi-programming actually 3 things are there. Multiple processes can be there in main memory, and CPU is executing these processes simultaneously. Simultaneously means because CPU can execute one process at a time, but in a time span it is executing more than one process. That is the meaning of executing multiple processes simultaneously. Means suppose P1 is executing on the CPU from 0 to T1. Okay, and at this duration it requires some IO. It requires some IO at this duration, at this time unit T1. Then the CPU can switch to process P2. Okay, at time T2, suppose this P2 requires some IO, so it can switch to P3 process. Okay, so multiple processes are there in main memory, and CPU can switch from one process to another process. And third thing, it is executing more than one process simultaneously, because in this time span it is executing all these 3 processes. That was not there in case of spooling. Okay, so this came in non-interactive systems only. This concept of multi-programming came in non-interactive systems. Okay, and why switching is taking place in non-interactive systems? Why switching is taking place from one process to another process? Why switching is taking place from one process to another process? Yeah. If IO is not available, input-output device for doing IO, the process is doing IO at this moment. That's why CPU switched to, instead of remaining idle, it switched to another process. Instead of remaining idle, because this process wants to use IO devices. So instead of waiting for these P2, it switched to P3. Okay, it does not remain idle. Now any of these devices are also not idle, and CPU is also not idle. Means for efficient device utilization, IO utilization and CPU utilization, this is the main purpose of the concept of multi-programming in non-interactive systems. Okay, so yes. सर ये ग्राफ जो आपने बनाया थोड़ा समझ नहीं आया सर. ये वाला? यस सर. इसमें तो ये टाइम एक्सेस है, ठीक है, और ये CPU एग्जीक्यूशन आप बोल सकते हैं. CPU किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है.
So at this 0 to T1, it is executing P1. Now P1 suppose wants to produce its output here at this point to some output device, and it will take time to produce the output on the output device. Okay, so CPU remains idle. So what we are doing at T1, we are switching CPU to P2. We are giving control of CPU to process P2. P2 starts because P2 is already there in main memory. Okay, process program in main memory is called as a process. This you know na? Program under execution in main memory is called as a process. Yes, sir, पता है. पता है? Yes. So this process now CPU is executing, and this is using its IO device. Okay, now suppose P2 required some input and that input is not available, because taking input from the input device takes time. So at that time CPU starts executing P3. If this scenario is there that we are executing multiple processes simultaneously on the CPU, that is multi-programming, the concept of multi-programming. And it came in non-interactive systems itself after the concept of spooling. This you can see from some history part in the Galvin itself. All these things are written. I have written the page number of 8th edition, but that thing is there in 9th edition also on some different page number. ठीक है? Okay, sir. But Okay, sir. you means you understand the concept of multi-programming na? The main advantage of concept of multi-programming is to increase the CPU utilization as well as the device utilization. But main motive was to increase the CPU utilization only, because at that time the CPU was a precious resource. Is it okay? Now, Yes. how this switching takes place, from one process to another process, we can further categorize the multi-programming system into multi-tasking and multi-user. इस तरह के सिस्टम को जो हम नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ये इसको हम कह सकते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मल्टी-प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसलिए कह रहे हैं कि उन नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में क्या होता था कि सपोज फोर्ट्रॉन के जॉब्स हैं, कोबोल की जॉब्स हैं, तो आपका जो प्रोग्रामर होते थे ऑपरेटर को जॉब्स देते थे. आप हिस्ट्री में देखोगे कि ऑपरेटर जो है, बिकॉज दे वर नॉन इंटरेक्टिव, तो सब अपने जॉब सबमिट करते थे प्रोग्रामर ऑपरेटर को मॉर्निंग में. तो ऑपरेटर क्या करता था कि फर्स्ट ही लोड्स द कंपाइलर ऑफ from the input device, he loads the compiler of COBOL, and then it runs all the COBOL jobs. Then it loads the compiler of Fortran, then it runs all the Fortran jobs. तो वो जो है बैच में एग्जीक्यूट करता था जॉब्स को, इसलिए इसका नाम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था. फिर उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट आ गया नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में, तो इट इज मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विचिंग क्यों होता है बेटा? इन केस सिर्फ इसलिए होता था. इन नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में स्विचिंग क्यों होता था? ये नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स थे, और स्विचिंग क्यों होता था? इन केस ऑफ IO. If a process wants to do IO, then only switching takes place. Okay, and what is the purpose? Optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. Okay, now what happens after, means the systems becomes interactive in nature. अब ये कंसेप्ट तो कहीं नहीं गया ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तो था ही, बट सिस्टम्स बिकम्स इंटरेक्टिव इन नेचर. अब मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स में कंसेप्ट ऑलरेडी है एंड सिस्टम बिकम्स इंटरेक्टिव, तब स्विचिंग जो है आप क्या चाहोगे कि आपके नीड के ऊपर हो, बिकॉज इट इज इंटरेक्टिव सिस्टम. डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड स्विचिंग हो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. अभी मैं
कुछ व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, कभी टीम्स चला रहा हूँ, कभी ब्राउजर चला रहा हूँ, कभी वर्ड ओपन कर रहा हूँ, कभी म्यूजिक सुन रहा हूँ, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन माई नीड द स्विचिंग शुड टेक प्लेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड। सो इस कैटेगरी को हमने कहा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Means depending on the switching takes place from one process to another process, we can categorize the multi-programming operating system into these three categories. For this non-interactive system category, we can call it as multi-program batch operating system, in which switching only takes place in case of unavailability of IO. Unavailability of IO. Okay, means when a process waits for IO, the switching takes place. Now, in this category of interactive systems, where a single user is interactively working on the PC, we a different need requires, the different need arises. एक और नीड आया ना कि डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड भी स्विचिंग होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड स्विचिंग हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड, देन इट इज मल्टीटास्किंग, वी नेम इट एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर इंटरेक्टिव इन नेचर, ओके। और ये मल्टी यूजर जो है इट इज आल्सो इंटरेक्टिव। फिर अगेन मल्टीटास्किंग के बाद में मल्टी यूजर का कंसेप्ट आया कि मल्टीपल यूजर्स साथ में एक सिस्टम पे काम करें। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफी सारे यूजर एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं यूजिंग डंप टर्मिनल्स। यूजिंग डंप टर्मिनल्स एक लिनक्स सिस्टम है, उस पे सब कनेक्टेड है, ठीक है। डंप टर्मिनल्स में सीपीयू वाज नॉट देयर। जब हमने बीटेक किया था तब भी हर किसी के बच्चे के पास सीपीयू नहीं मिलता था, डंप टर्मिनल रहते थे और एक मशीन से हम कनेक्टेड रहते थे, लिनक्स मशीन से, और फिर प्रोग्रामिंग करते थे। Because at that time also CPU was very costly. Okay, so in multi-user system it is interactive, it is also interactive in nature, interactive था, but अब multiple users, because it is supporting multiple users, तो आपका क्या और रिक्वायरमेंट आ जाएगा। जैसे इधर डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड स्विचिंग हो रहा था, इधर आप क्या चाहेंगे कि स्विचिंग कैसे हो। सर यूजर अलग अलग यूजर के हिसाब से जो भी यूजर्स लगे हुए हैं, जितने भी यूजर है सबको सीपीयू मिले, वेरी गुड। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद स्विचिंग होना चाहिए, इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग सिस्टम्स भी कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर, ठीक है। तो इन टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर स्विचिंग टेक्स प्लेस आफ्टर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, मींस 10 टाइम मिनट्स, 5 टाइम मिनट्स। क्यों ये स्विचिंग क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज एवरी यूजर शुड हैव अ फीलिंग दैट द सिस्टम इज विथ हिम। all the users should have this feeling that the system is with him. Okay, he is working interactively on the system. So the switching should take place after definite amount of time from one process to another process, because these processes they belong to different users. They belong to different users. ठीक है। लेकिन अब मल्टी यूजर, जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो गया, मल्टीटास्किंग आपका विंडोज जिस तरह हम यूज करते हैं वो मल्टीटास्किंग हो गया, और मल्टी प्रोग्राम बेस तो खैर नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, इन मल्टी यूजर बिकॉज इट इज इंटरेक्टिव सिस्टम्स, आफ्टर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम स्विचिंग होगा, लेकिन क्या डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड नहीं होगा? डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड स्विचिंग होगा कि नहीं होना चाहिए? In होना multi-user, होगा सर। नो नो, इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ओएस बिल्ड कर रहे हो, ये इंटरेक्टिव है और मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप ऐसा अरेंजमेंट रख रहे हो कि स्विचिंग जो है डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हो, फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड आपको स्विचिंग का प्रोविजन रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? yes sir. पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्टिव सिस्टम है, तो ये पॉइंट रहेगा आपका। इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ आईओ स्विचिंग होगा कि नहीं होगा मल्टी यूजर में?
Yes, sir. या मल्टीटास्किंग में होगा, क्योंकि उस बेसिक पर्पस तो मल्टी प्रोग्रामिंग का वही था कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ आईओ, सीपीयू आइडल तो नहीं रहेगा ना कि यूजर नहीं चाहेगा तो स्विचिंग ना हो, या आफ्टर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम ही हो। 10 टाइम यूनिट्स के लिए मुझे सीपीयू दे रखा है, लेकिन मैंने 1 टाइम यूनिट के लिए यूज किया, फिर मैं आईओ के लिए वेट कर रहा हूँ, तो सीपीयू तो इधर स्विच करेगा ही करेगा। मतलब ये पॉइंट रहेंगे मल्टी यूजर में, सारे पॉइंट रहेंगे डिपेंडिंग, बिकॉज इट इज इंटरेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड भी स्विचिंग होगा। बेसिक पर्पस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो था, अनअवेलेबिलिटी ऑफ आईओ के केस में स्विचिंग होना, वो होगा ही होगा। मल्टीटास्किंग में ये एक्स्ट्रा फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये नॉन इंटरेक्टिव था, तो सिर्फ हमें यही रिक्वायरमेंट था कि आईओ अनअवेलेबल है तो स्विचिंग हो। मल्टीटास्किंग में क्योंकि इंटरेक्टिव हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड भी स्विचिंग हो, हम इस तरह का प्रोविजन रखेंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम बनाएंगे मल्टीपल यूजर्स के लिए, तो ये सब चीजें रहेंगी। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट है वो रहेगा, डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड स्विचिंग होगा ही होगा क्योंकि इंटरेक्टिव है। लेकिन एक और रिक्वायरमेंट हम ऐड कर देंगे अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, एक और रिक्वायरमेंट ऐड करनी पड़ेगा हमें, क्योंकि ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑल द यूजर्स शुड हैव दिस फीलिंग दैट सीपीयू इज विद देम, तो वी विल ऐड वन मोर रिक्वायरमेंट दैट द स्विचिंग टेक्स प्लेस आफ्टर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। ठीक है, अब ये स्पूलिंग का कंसेप्ट रहेगा, इन सब में रहेगा, क्योंकि स्पूलिंग का अपना एक कंसेप्ट है। स्पूलिंग का कंसेप्ट अभी भी है, आज के हमारे मॉडर्न पीसीज में भी स्पूलिंग कोई कंसेप्ट गया नहीं है। स्पूलिंग का कंसेप्ट आया तब था, लेकिन अभी भी स्पूलिंग का कंसेप्ट इज देयर। प्रिंट स्पूलर भी होता है हमारा, लार्ज हम ट्रांसफर करते हैं हार्ड डिस्क पे, तो डीएमए कंट्रोलर पिक्चर में आता है। ठीक है, वो सब आप देखोगे आगे, डीएमए ट्रांसफर होता है ना लार्ज आईओ ट्रांसफर के लिए, डीएमए के थ्रू डायरेक्ट, मतलब आईओ डिवाइस जो है, सीपीयू जो है डीएमए को बोल देता है। जैसे आप हार्ड डिस्क पे आपका प्रोसेस काफी कुछ लिखना चाहता है, तो सीपीयू डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर को कमांड दे देता है, वो मेमोरी से आपका आईओ डिवाइस पे लिखता है, और जब फिनिश हो जाता है तब वो इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को। डीएमए कंट्रोलर इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को कि ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, तब सीपीयू जो है अगेन उस प्रोसेस को रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अभी भी स्पूलिंग का कंसेप्ट है, प्रिंट स्पूलर का एग्जांपल दिया, डीएमए का एग्जांपल दिया, तो कोई कंसेप्ट गया नहीं। स्पूलिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग में एडिशनल है, मल्टी यूजर में एडिशनल है। अब जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे ना उस दिन, जैसे कि आप क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ कि आपका नेटवर्क आ गए, मल्टी यूजर के बाद नेटवर्क आ गया, नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उस दिन कुछ बच्चे मल्टी यूजर का क्या बोल रहे थे कि हम टीम्स पे सब साथ में क्लास कर रहे हैं, या कोई शेयर सोर्स हम नेटवर्क से एक्सेस कर रहे हैं, शेयर, तो दैट इज मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर का कंसेप्ट इतना है, इतना सपोर्ट हो रहा है तो मल्टी यूजर है। लेकिन नेटवर्क क्या होता है, इट इज ए कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, इट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। अब इस नेटवर्क में आप फाइल शेयर करना चाहते हो, डाटा शेयर करना चाहते हो, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी आप करना चाहते हो किसी और मशीन पे, और आउटपुट आप खुद देखना चाहते हो, तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अगेन ओएस में ऐड होगी, उसको हम कहते हैं नेटवर्क ओएस। ठीक है, नेटवर्क ओएस। तो नेटवर्क ओएस के लिए हमारे लिनक्स एंड विंडोज दोनों ही नेटवर्क ओएस को सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क ओएस के फीचर्स को, क्योंकि टीसीपी आईपी स्टैक जो है दोनों के कर्नल के अंदर है। दोनों के कर्नल जो है, ये जो टीसीपी आईपी मैंने लेयर्स दिखाई थी ना एक लेक्चर में, ये आपका फिजिकल मान लो या डाटा लिंक, हाँ सर। ठीक है, और टीसीपी आईपी, सॉरी आईपी टीसीपी, और उसके ऊपर एप्लीकेशन। ठीक है, ये डाटा लिंक इथरनेट सब इधर दिखा दिया, ये आईपी आपकी नेटवर्क लेयर हो गई, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई टीसीपी। तो ये पूरा जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक,
ये कर्नल के अंदर होता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक कर्नल के अंदर होता है, तो ये विंडोज कर्नल में भी होता है, लिनक्स कर्नल में भी होता है। तो इसी प्रोटोकॉल स्टैक से कर्नल के अंदर हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं दो पीसीस के बीच में, फाइल शेयरिंग करते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम दूसरे पीसी पे कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी यूजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि मल्टी यूजर नहीं आ रहा है, ये शेयरिंग हो रहा है। हम एग्जीक्यूशन भी शेयर कर रहे हैं डिफरेंट पीसीस में, मान लो एग्जीक्यूशन भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग था, किसी और पर्पस के लिए था। ये नेटवर्क ओएस का पर्पस कुछ और ही है। टू दिस इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज अ नेटवर्क। उस नेटवर्क में हमें फाइल शेयरिंग करनी है, डाटा शेयरिंग करना है, मुझे एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे कराना है, किसी प्रोसेस का रिजल्ट मैं लूंगा, ठीक है। तो वो पूरा जो है सपोर्ट कौन दे रहा है आपको? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक दे रहा है। दैट इज देयर इन विंडोज आल्सो, दैट इज देयर इन लिनक्स आल्सो, ओके। और अगेन ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक सर्विसेज कैसे देगा एप्लीकेशन को, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक ही है, थ्रू सिस्टम कॉल्स। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक कुछ सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करेगा जिससे हम सर्विसेज ले सकेंगे। अब तक तो हम सर्विसेज लेने के लिए क्या बोल रहे थे? कमांड्स, शेल। लेकिन ये शेल कमांड ये किससे बने हैं? सी प्रोग्राम से नहीं, ये याद है ना, सी प्रोग्राम से ही ये शेल कमांड सब। तो ये सब सी प्रोग्राम सिस्टम कॉल्स के थ्रू बने होते हैं। तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक भी एक सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स देता है, प्रोवाइड करता है यूजर को, जिससे आप ये सर्विसेज ले सकते हो कर्नल की, नेटवर्क ओएस की करस्पॉन्डिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में क्या होता है, थोड़ा इधर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, हमें पता होता है कि हम कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में दैट ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो प्रोवाइडेड। तो लेकिन अब इतना आगे ना जाएं, नोट्स तक ही रहें, क्योंकि ये आगे हम यहाँ भी जा सकते हैं, वापस स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ओएस में वापस जा सकते हैं। लेकिन हाँ, नोट्स में जो कवर हो गया वो दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ा ले लेंगे चाहे। लेकिन आपको पता लग गया ना नेटवर्क ओएस डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या है, वापस ले लेंगे एक बार। और इसमें जो है लेयर्ड माइक्रो कर्नल हाइब्रिड मॉड्यूल्स भी, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक बार वापस ले लेंगे बुक से, ठीक है। अब नोट्स की बात करें तो डेफिनेशन हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हो गया। अब ये पूरा नोट्स में है, बुक में तो है ही, लेकिन ये पूरा पोर्शन, सॉरी बचा हुआ पूरा पोर्शन नोट्स में है, ये अब मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? अब आपको क्लियर है ना कि कौन सा, सब क्लियर हो गया आपको? चलो यस सर, हो गया। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, that is this services and system calls, OS services, system commands। सर ये टॉपिक सर कल डिस्कस कर लीजिएगा, अभी टाइम भी ओवर हो गया है फिर सर। अरे सीआर, मुझे 2 क्लास लेने को बोला है इसने। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता। कल ले नहीं पाया था ना मैं, तो ले ही लेता हूँ, क्योंकि जिससे हमारा भी कवर हो सब कुछ। वैसे देखा जाए तो अब आप मतलब ये तो कवर्ड मान सकते हो, वैसे बुक से लेना है, लेकिन कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, 1 लेक्चर ही लगेगा, ठीक है। और इसमें 1 लेक्चर, 2 लेक्चर में ये पूरा कवर हो जाएगा। आज ये कवर कर देता हूँ। अब हम ओएस सर्विसेज कैसे देते हैं वो हम पहले तो, ओएस सर्विसेज हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या क्या देता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल में क्या क्या सर्विसेज देता है ओएस आपको, हमने पढ़ा था ना कि ओएस में फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल है, प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल है, डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल है और मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ठीक है ना। तो इन डिफरेंट मॉड्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोड रूटीन्स लिखे हुए हैं,
वो रूटीन्स तो हमें पूरे सिलेबस पे पढ़ने हैं कि क्या प्रोसेस मैनेजमेंट ओएस कैसे करता है, एफएसएम कैसे करता है, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो सर्विसेज चाहिए ओएस का, आपको तो सर्विसेज चाहिए ना, बिकॉज इट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो आप सर्विसेज लेते हो थ्रू शेल, थ्रू कमांड्स। जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या क्या सर्विसेज लेते हो, यू क्रिएट अ प्रोसेस, है ना, एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, टर्मिनेट अ प्रोसेस, आईपीसी की सर्विस लेते हो। ये सारी सर्विसेज ओएस आपको देता है ना प्रोसेस मैनेजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। जब आप ब्राउजर पे क्लिक करते हो तो इट क्रिएट्स इट, एग्जीक्यूट्स इट, जब क्लोज बटन प्रेस करते हो तब इट टर्मिनेट्स इट, जब आप ls5wc लिखते हो या ls5 मोड लिखते हो तो इट डज द आईपीसी बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस यूजिंग पाइप। ठीक है, तो ये सारी ओएस सर्विसेज आपको देता है, तो आइदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से देता है या कमांड से देता है, कमांड लाइन इंटरफेस से थ्रू शेल। ठीक है, फाइल सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन कॉपी ए फाइल, यू कैन डिलीट अ फाइल, you can create a file, okay, you can edit a file, you can create and edit a file, you can share a file. सर मेरे को एक डाउट है सर फाइल सिस्टम yes में। सर विंडोज फाइल सिस्टम और लिनक्स के फाइल सिस्टम में दोनों में फर्क क्या है, मतलब मेनली बेसिकली दोनों डिफर कहाँ करते हैं? फाइल सिस्टम दोनों का जो डिस्क लेआउट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे लिनक्स के जो मैंने स्टैंडर्ड है, डिस्क लेआउट बोले तो सर मतलब डिस्क लेआउट दिखा रहा हूँ ना, जैसे स्टैंडर्ड यूनिक्स का मैंने दिखाया था, लैब में दिखाया था कि लेक्चर में दिखाया था, मुझे याद नहीं है कहाँ हाँ लैब में दिखाया था। डिस्क लेआउट आपने लैब किया था? नहीं सर, मेरी वेबटेक की लैब है सर। हाँ मतलब मैंने आप वीडियो देख लेना। तो डिस्क लेआउट अलग होगा विंडोज फाइल सिस्टम और लिनक्स फाइल सिस्टम का। बूट ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक होगा, कोई भी फाइल सिस्टम हो, जैसे विंडोज में NTFS फाइल सिस्टम होता है, हमारे लिनक्स में ext3 या ext4 होता है। ठीक है, ext4। तो आपका पहला ब्लॉक बूट ब्लॉक रहता है, फिर सुपर ब्लॉक रहता है लिनक्स में। लिनक्स की बात करें तो फिर एक स्टैंडर्ड यूनिक्स में तो आइनोड टेबल आ जाता है, और आइनोड टेबल के बाद डाटा एरिया। ठीक है, डाटा एरिया जहाँ पे एक्चुअली आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज स्टोर्ड है। आइनोड जो है हर फाइल डायरेक्टरी का अपना एक आइनोड होता है। सुपर ब्लॉक जो है पूरे फाइल सिस्टम का इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कितने टोटल ब्लॉक्स हैं, कितने फ्री हैं, कितने फ्री आइनोड है, लिस्ट ऑफ फ्री आइनोड, लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स, ये सब सुपर ब्लॉक में रहता है। ये स्टैंडर्ड यूनिक्स का पिक्चर दिखाया है। ext3 ext4 का थोड़ा अलग है कि इसमें बूट ब्लॉक तो होगा ही, जिसमें रैम बूट स्टेप रूटीन होता है, वो हर फाइल सिस्टम में पहला ब्लॉक बूट ब्लॉक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ext4 में या 3 में आपका पूरा डिस्क ग्रुप्स में बटा होता है, और हर ग्रुप में एक सुपर ब्लॉक होता है, एक बिट मैप होता है। बिट मैप ये इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन से ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड है, कौन से ब्लॉक्स फ्री है। ठीक है, उसके बाद आइनोड टेबल होता है, और फिर डाटा एरिया। फिर इधर अगेन एक बिट मैप होगा, सुपर ब्लॉक की कॉपी होगी, सेम सुपर ब्लॉक की कॉपी होगी। एक बिट मैप होगा जो डाटा एरिया के कौन से ब्लॉक्स फ्री है, कौन से ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड है इस ग्रुप में, वो इंफॉर्मेशन रखेगा। फिर आइनोड टेबल होगा, और फिर डाटा एरिया होगा, इस तरह से। लेकिन हम सिंपल इसको यही देख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि फ्री सर स्पेस ये मैनेजमेंट आइनोड है। टेबल होता क्या है? क्या सर ये आइनोड टेबल होता क्या है आइनोड? बेटा, वो लैब में बताया था मैंने सर, आपको वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक सर। सर दूसरी लैब आप दूसरे बैच के लोगे तो बताओगे ही। अगर वीडियो सुन लो तो अच्छा ही है, वही वीडियो चला दूंगा, और फिर बाद में बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो इंटरप्ट करते रहेंगे, मतलब मेरे भी सर फिर दोनों बैच की लैब साथ में ले लो, हमारी छुट्टी हो जाएगी एक लैब में। हाँ, तुम्हारा तो कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो नेक्स्ट वीक से देख, अभी तो ये वीडियो सुनना तो जरूरी है ना, ये वीडियो सुन के उस समय चला दूंगा, या वो तो एक ही बात है, वीडियो चलाओ या फिर
चला दूंगा और फिर कहीं डाउट होगा तो आप बोल तो दोगे ना एटलीस्ट, या आप सुन लेना, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या दोबारा पढ़ा दूंगा, जैसे आप कहोगे कर लूंगा। ओके सर। ठीक है सर, फिर एक बार वीडियो देख लेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेंगे सर। हाँ लेकिन खैर ये तो फाइल सिस्टम तो अलग अलग है इनके। डॉस के फाइल सिस्टम में क्या होता है, फैट होता है, फाइल अलोकेशन टेबल। मतलब ये डिफरेंट टेबल्स क्यों बनती है, टू कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स। तो हर किसी फाइल सिस्टम में टेबल्स का अलग अलग तरह के टेबल्स बनते हैं, क्योंकि अलग अलग फाइल स्पेस मैनेजमेंट रहता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट रहता है। अब वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पूरा एक चैप्टर है। कंटिन्यूअस अलोकेशन आप कर सकते हो डिस्क ब्लॉक्स का, आप लिंक्ड अलोकेशन कर सकते हो, आप इंडेक्स्ड अलोकेशन कर सकते हो। तो पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अल्टीमेटली उस चैप्टर पे अभी हमें जाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही ना, क्योंकि अभी तो हम उन रूटीन्स की बात कर ही नहीं रहे कि मेमोरी कैसे अलोकेट करता है, डी अलोकेट करता है ओएस। ये तो वो काम करता है, फाइल्स अलोकेट करेगा, डी अलोकेट करेगा, आपके बैड सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन रखेगा, फ्री सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन रखेगा। ये सब तो उसके फंक्शन हो गए ना, लेकिन फंक्शन अलग है और सर्विसेज अलग है। सर्विसेज तो आपको पता ही है ना क्या क्या देता है ओएस, हम तो ओएस सर्विसेज पढ़ रहे हैं, और वो कैसे देता है बस उसकी बात करेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर में। तो ओएस क्या क्या सर्विसेज देता है इन मॉड्यूल्स में, कैसे देता है, वो फंक्शन हो गया, वो तो हर चैप्टर में चलेगा। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा तो आप देखोगे प्रोसेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज कैसे देता है। जब फाइल सिस्टम का चैप्टर आएगा तब आप देखोगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस अलोकेशन भी हो सकता है, इंडेक्स अलोकेशन भी हो सकता है, फाइल्स को ब्लॉक अलोकेट करें तो आपका लिंक्ड अलोकेशन भी हो सकता है, फिर डायरेक्टरी एंट्री कैसी रहती है, बैड ब्लॉक। सर आगे बढ़िए सर। आगे ही बढ़ रहा हूँ, आगे ही हूँ मैं। बैड ब्लॉक्स का मतलब सर्विसेज पे आ जाइए सर, फंक्शन छोड़ दीजिए। हाँ नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा ना बेटा क्या क्या पढ़ेंगे उस चैप्टर में। बैड ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन तो डिफरेंट रूटीन्स रहेंगे, फिर आप चूज करोगे। फिर हम देखेंगे कि लिनक्स में कौन से रूटीन्स यूज होते हैं, विंडोज में कौन से रूटीन्स यूज होते हैं। समझ रहे हो ना, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग हो सकता है, सेगमेंटेशन हो सकता है, उनके फायदे नुकसान देखेंगे, और फिर देखेंगे एक्चुअली क्या यूज होता है हमारे सिस्टम्स में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मतलब जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, और मेनली लिनक्स का देखेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आपको देता क्या है, ये सब करता है वो ठीक है, फंक्शन ठीक है, लेकिन देता क्या है, सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या क्या देता है, ये सब सर्विसेज तो आप लेते आए हो ना, काफी टाइम से ले रहे हो ये सब सर्विसेज। ये सब सर्विसेज चाहे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ले रहे हो या कमांड लाइन इंटरफेस से ले रहे हो, आप फर्स्ट ईयर से तो ले ही रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज आप ले रहे हो ओएस की। तो आप ले कैसे रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ले रहे हो, शेल से ले रहे हो, और कमांड लाइन इंटरफेस से ले रहे हो। तो ये जो कमांड सिस्टम कमांड्स हैं और या शेल है, दे आर सी प्रोग्राम्स, दे आर सी प्रोग्राम्स, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रोग्राम्स भी सी प्रोग्राम्स है। तो एक्चुअली ओएस की सर्विसेज आप इन सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल से लेते हो, लेकिन ये एंड यूजर के लिए है। एंड यूजर इस तरह लेता है, एंड यूजर मतलब कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, वो सर्विसेज GUI या इन सी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूटेबल से ही लेगा। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल्स को रन करके ही ओएस की सर्विसेज लेगा, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो। लेकिन ये CSE का स्टूडेंट जो है इन सर्विसेज को बिल्ड करेगा। CSE का स्टूडेंट यानी सिस्टम प्रोग्रामर जो है इन सर्विसेज को, सी प्रोग्राम्स को लिखेगा। ठीक है, तो इन सी प्रोग्राम्स में एक्चुअली क्या यूज होता है, सिस्टम कॉल्स। जितने भी ये कमांड्स हैं, जितना भी ये शेल है, सी प्रोग्राम्स हैं, इन सब में सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कॉल्स जो है वो एक्चुअल इंटरफेस है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल ठीक है फॉर एंड यूजर, शेल एंड कमांड्स और GUI is interface to the operating system to take the services of the operating system. But for system programmer, the interface to the operating system is system calls. ठीक है ना, ये देखो क्या लिखा है मैंने सिलेबस में।
OS सर्विसेज, सिस्टम कमांड्स एंड सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कमांड्स किसके लिए है? एंड यूजर के लिए। और सिस्टम कॉल्स किसके लिए बेटा? सिस्टम प्रोग्रामर के लिए। तो आप जो है ये सिस्टम कॉल्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉपी कमांड है, तो ये तो कॉपी कमांड में कौन सा सिस्टम कॉल्स यूज होगा? ये सिस्टम कॉल्स की वी विल ओपन फाइल 1। एग्जैक्ट सिंटैक्स हम बाद में पढ़ेंगे इन सिस्टम कॉल्स का, लेकिन इस तरह के सिस्टम कॉल्स होंगे: ओपन F1, ओपन F2, रीड फ्रॉम F1 अप टू एंड ऑफ फाइल, राइट इनटू F2 एंड देन क्लोज बोथ द फाइल्स, क्लोज F1, क्लोज F2। तो जो इसका सी प्रोग्राम होगा वो इस तरह का होगा, दैट यूजेस दिस ओपन, रीड, राइट, क्लोज सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स का डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम कॉल्स दे आर यूज्ड बाय सिस्टम प्रोग्रामर टू अवेल द लोअर लेवल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हायर लेवल सर्विसेज थी, कॉपी, एडिट, शेयरिंग, remove, ये higher level services थी. They are built on lower level services provided by the operating system, and we can avail these lower level services using these system calls. अब ये system calls का जो कोड होगा वो कर्नल के अंदर लिखा होता है, ये आपको खुद नहीं लिखना पड़ता. You have to only use, you should only know the syntax of this system call. They are just like procedure call. प्रोसीजर कॉल में क्या होता है बेटा कि प्रोसीजर भी आप लिखते हो और प्रोसीजर को कॉल कर लेते हो, यही होता है ना. लेकिन इसमें क्या होगा सिस्टम कॉल में, जब आपको कॉल करना है इसे विद प्रॉपर सिंटैक्स, सिंटैक्स आपको बता दिया जाएगा, बट कोड इसका आपको लिखने का जरूरत नहीं है. ओपन, रीड, राइट, क्लोज का क्यों नहीं लिखने का जरूरत है? कि ये आपके प्रोग्राम में आपका यूजर स्पेस में है ना, ये यूजर स्पेस है, ये कर्नल स्पेस है. कर्नल स्पेस मीन्स जहां पे मेमोरी में कर्नल प्रोसेस रन हो रहे हैं, मेमोरी है ये. और यूजर स्पेस मीन्स जहां पे आपके प्रोसेसेस है. तो सपोज आपने कॉपी सीपी प्रोसेस लिखा, सी प्रोग्राम लिखा, दैट इज रनिंग हियर इन यूजर स्पेस, योर प्रोसेस इज रनिंग हियर. ओके, so when this first system call comes in your program, control goes to kernel, control goes to kernel and the routine of open will get executed. कर्नल के अंदर जो ओपन का रूटीन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. रीड आएगा तो रीड का रूटीन कर्नल के अंदर एग्जीक्यूट होगा. तो आप चाह के भी अगर ऑब्वियसली लिख तो सकती हो ना इनके कोरस्पॉन्डिंग कोड आप, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोड इनसाइड द कर्नल, कर्नल स्पेस, कर्नल का कोड किसने लिखा है? प्रोग्रामर ने लिखा है. तो आप भी अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप कोड लिख सकते हो. कोड लिख भी दोगे आप तो भी सीपीयू उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सीपीयू जो है आपके प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ रीड सिस्टम कॉल, आपने रीड का कोड लिख दिया, रीड का कोड लिख दिया. मतलब प्रोसीजर कॉल में तो कोड आप खुद लिखते हो ना, या हेडर फाइल इंक्लूड करते हो. इसके लिए किसी हेडर फाइल का जरूरत नहीं है. ये सिस्टम कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर्नल के पास चला जाएगा, वही कोड एग्जीक्यूट होगा. आप अपना कोड लिख भी देते हो तो वो एग्जीक्यूट सीपीयू नहीं करेगा. तो मेरा क्वेश्चन है, सीपीयू वो कोड क्यों एग्जीक्यूट नहीं करेगा? मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हम इस तरह का प्रोविजन रख रहे हैं कि सीपीयू आपका खुद का कोड एग्जीक्यूट ना करे? दिस इज माय क्वेश्चन. Because we might by mistake damage other programs. ओके, एनी अदर? फास्ट नहीं होगा, अनएफिशिएंट हो. ओके, what is the second objective of operating system? यूजर कन्वीनियंस. फर्स्ट इंटरफेस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था यूजर कन्वीनियंस. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? पढ़ाई नहीं क्या आपने? रिसोर्स सर मैनेजमेंट, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट. रिसोर्सेज. अरे इंट्रोडक्शन की फाइल आपने खोल के ही नहीं देखी क्या? देखिए
There are to develop system program. आपने ये फाइल खोला ही नहीं लगता है. In multi-user environment, secure environment between different users is provided by the OS. Also, proper and efficient use of resources. To provide secure environment between different users, to manage the resources properly and efficiently in multi-user environment. तो इसी सिर्फ यही लाइन इसका आंसर है. To provide secure environment between different users, to manage resources properly and efficiently in multi-user environment, OS does not allow या system does not allow, OS तो नहीं कहेंगे, system does not allow क्योंकि CPU execute नहीं करेगा. CPU जो है आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं सिस्टम कॉल के corresponding. CPU आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं क्योंकि अभी बेटा अभी जिन्होंने लैब की है उनको पता है कि रीड आप जो है मल्टी यूजर सिस्टम में हमने देखा था ना ls-l का आउटपुट कि ऑनर के लिए RWX परमिशन है, अदर्स के लिए फिर कुछ परमिशंस है, ठीक है, ग्रुप के लिए अदर्स के लिए ls-l के आउटपुट में. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. तो अगर मल्टी यूजर सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ही मेन ये जरूरत है कि सिस्टम कॉल का कोड यूजर स्पेस में एग्जीक्यूट ना कर सके कोई. ये सिंगल यूजर में जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव भी ओएस का मल्टी यूजर के लिए था, ठीक है ना. तो आपका जो है सिक्योरिटी कहाँ रहेगा, ये RWX परमिशंस तो मतलब जब आप किसी फाइल को ओपन करने का ट्राई करोगे तो उसका आइनोड रिट्रीव होगा मेमोरी में. आइनोड के अंदर ही मैंने बोला था सब है, UID, GID किस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग है, GID क्या है, परमिशंस क्या है ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए. तो सब आइनोड में से कौन चेक करेगा, OS चेक करेगा ना, और तभी उस फाइल के ब्लॉक्स को वो रिट्रीव करके मेमोरी में लाएगा. क्यों बेटा, आइनोड के अंदर ही OS मतलब फाइल का सारा मेटा डाटा है और फाइल के ब्लॉक नंबर्स हैं. तो पहले चेकिंग करेगा ना OS ओपन सिस्टम कॉल का कोड जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसका आइनोड रिट्रीव करेगा और देखेगा ये यूजर जिसका प्रोसेस चल रहा है इसका UID क्या है, प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग यूजर ID क्या है और ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इस फाइल के लिए ऑनर में आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है, अदर्स में आ रहा है, इसको परमिशन है क्या, परमिशन है क्या, ठीक है ना. तो ये सब कौन देख रहा है, OS देख रहा है ना ओपन के कोड में. लेकिन सर इस फाइल का क्या नाम है जो मेटा डेटा रखता है, इसका क्या नाम था वापस बताना. आइनोड. ये सर आपने लैब में कराया है. हाँ बेटा, ठीक है सर. आइनोड सुन लेना एक बार, वो थोड़ा डिस्कशन लैब में काफी कुछ बता दिया था. मेरे को वो गलती की, मेरे को सारे क्लास की ले लेनी चाहिए थी. हाँ सर. अब क्या करें, अब अगली बार सारे की ले लेंगे. सर अब सीधा ऑफलाइन दीजिएगा लैब. वो दूसरे टीचर से बात करके और सबकी एक साथ ले लेंगे. सर वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना लैब वो की. कर दी मैंने आज सुबह कर दी, आपकी टीम्स पे रख दी सुबह. ठीक है, मतलब लेकिन ठीक है, ये मतलब जिन्होंने लैब नहीं भी की वो बच्चे भी समझ रहे हैं कि एक्चुअली अगर हम कर्नल के थ्रू जाएंगे तो कर्नल चेक करेगा कि किस कैटेगरी का प्रोसेस, किस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोसेस है. प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग यूजर भी आप देखोगे PS कमांड जब हम करेंगे लैब में, अभी किया नहीं, ठीक है. और ये फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग वो किस कैटेगरी में आ रहा है, उसको परमिशन है कि नहीं, तभी वो उसको ओपन करके देगा, ठीक है ना. नहीं तो वो ओपन करके नहीं देगा. और लेकिन अगर आप खुद का ही कोड लिख रहे हो ओपन का तो आप तो ये सब चेकिंग नहीं करोगे, आप तो डायरेक्टली उसे ओपन कर लोगे. तो सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप सिस्टम कॉल का कोड, CPU आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा. किसी भी सिस्टम कॉल का कोड CPU आपको एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा इन ए मल्टी यूजर सिस्टम, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया सिक्योरिटी रीजन. फिर बाद में प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर दो यूजर प्रिंट सिस्टम कॉल अपना अपना कर लेते हैं तो प्रिंटर को सिंक्रोनाइज मैनर में यूज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं किसका था,
ये तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है ना कि जो भी शेयर रिसोर्सेज है उनका म्यूचुअल एक्सक्लूजन रेस्पॉन्सिबिलिटी ओएस रूटीन्स का है, लेकिन हम ओएस रूटीन्स के थ्रू तो जा ही नहीं रहे। एक यूजर अपना प्रिंट एग्जीक्यूट कर रहा है कोड, दूसरा यूजर अपना प्रिंट का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दोनों प्रिंटर को एक साथ एक्सेस करेंगे तो प्रिंटर पे आउटपुट सही नहीं आएगा, मतलब किसी के काम का नहीं आएगा। और अगर ओएस के थ्रू जाते हैं तो ओएस जो है उसको सिंक्रोनाइज्ड वे में करता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में करता, ठीक है ना। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स, सिक्योर यूज ऑफ रिसोर्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, ये सब एफिशिएंट रूटीन्स ओएस के अंदर लिखे होंगे मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा when we do not allow a user to implement his own code corresponding to system call, to execute his own code corresponding to system call, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया बेटा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, why it should not be allowed, it should not be allowed for this fulfilling this objective of OS in a multi-user environment, ठीक है। वो नोट्स में लिखा है विद एग्जांपल जो मैंने दिए हैं वो भी नोट्स में लिखे हैं, क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे मैंने बोला वैसे ही क्वेश्चन है कि वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट आवर ओन कोड, वी हैव टू यूज कोड कोरस्पॉन्डिंग टू सिस्टम कॉल इन द कर्नल वाई, तो उसका आंसर विद एग्जांपल्स लिखा है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये एक सीपीयू क्यों नहीं करेगा बेटा, मतलब ये चीज को हम कैसे गारंटेड करेंगे, ये तो हो गया क्यों हमें गारंटेड करना जरूरी है, लेकिन कैसे इसको गारंटेड करेंगे कि आपका यूजर प्रोसेस चल रहा है और आप तो कोड तो लिख ही सकते हो, कि इधर जो कोड लिखा है वो भी प्रोग्रामर ने ही लिखा है ना, इधर कर्नल का कोड भी प्रोग्रामर ने ही लिखा है, आप ही प्रोग्रामर हो, तो आप रीड यूज ना करके अपना खुद का वो कोड लिख सकते हो जो रीड के करस्पॉन्डिंग है, मतलब आपको उतनी नॉलेज है मान लिया, तो आपने कोड लिख दिया लेकिन सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये कैसे हम इसको गारंटेड करेंगे इस चीज को। सर कर्नल के कोड को किसी तरीके से यूनिक बना के, नहीं, कर्नल का कोड तो प्रोग्रामर ने ही लिखा है, आप लिख दो वो कोड और वो एग्जीक्यूट करने लगोगे तो नहीं करेगा कर्नल, सॉरी सीपीयू करता है ना एग्जीक्यूट, तो सीपीयू नहीं करेगा, सिर्फ वो कर्नल स्पेस का ही करेगा। क्यों कर्नल स्पेस में हो रहा है तभी करेगा, क्योंकि सीपीयू क्या होता है बेटा, सीपीयू में दो तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस और एक होते हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। मतलब ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस ऐड, मल्टीप्लाई, मूव, ठीक है ना, हमने काफी अरिथमेटिक ऑपरेशन काफी सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज सेट जो होगा सीपीयू का, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ प्रिविलेज्ड होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये तो ऑर्डिनरी मोड यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जब सीपीयू का एक फ्लैग होता है, सीपीयू पे एक कंडीशन कोड रजिस्टर था ना, जैसे कंडीशन कोड रजिस्टर में फ्लैग्स थे, उसी तरह एक फ्लैग होगा जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग इन द ऑर्डिनरी मोड और इट इज एग्जीक्यूटिंग इन द प्रिविलेज मोड, ओके। तो when it is executing a user process, its mode is ordinary mode, मतलब जब ये सपोज आपके प्रोसेस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं ऐड, मल्टीप्लाई, मूव, तो ये सब ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस है, तो सीपीयू एग्जीक्यूट करता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम कॉल के कोड में एक ना एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जरूर होगा, मतलब हम उसी तरह प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सीपीयू मैन्युफैक्चरर जब असेंबली लैंग्वेज सेट बनाएगा तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रिविलेज रखेगा जो कि सिस्टम कॉल के कोड में आते हैं, क्योंकि ये जो सीपीयू के 2 मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये 8088 के बाद ही इंटेल का जो 8085 और 8086 था उसमें ये डुअल मोड ऑपरेशंस नहीं थे, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक 8086 पे ही आ गया था, ठीक है। अभी तो पता नहीं कहाँ जा चुके हैं हम, 8088 के बाद 186, 286, 386, P1, P2, P3, I1, I2, I3, I7,
लेकिन इस इधर से ही डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो डुअल मोड ऑफ सीपीयू ऑपरेशन ये हार्डवेयर सपोर्ट नहीं होगा तो हम ये चीज गारंटेड नहीं कर सकते, जो हमने बोला गारंटेड करने को वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि डुअल मोड ऑपरेशन 8088 के बाद से हर सीपीयू में है, मतलब ये तो बहुत ही पहले का हो गया 8088 तो डुअल मोड ऑपरेशन है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे जो ऑर्डिनरी मोड में चलेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे प्रिविलेज मोड में ही चलेंगे, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रिविलेज मोड में दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ऑर्डिनरी मोड में सिर्फ ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और सिस्टम कॉल के कोड में एक ना एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जरूर रहेगा, ठीक है ना, एक ना एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जरूर रहेगा, जिससे कि जैसे ही वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आप यूजर मोड में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे, क्योंकि वो फ्लैग डिटरमाइन करेगा ना कि इसका सीपीयू का मोड तो ऑर्डिनरी मोड है अभी, तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दैट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली जब सिस्टम कॉल आता है आपके प्रोग्राम में तब होता क्या है, सपोज आपके प्रोग्राम में ये ओपन सिस्टम कॉल आया, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होता क्या है कि एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है। एक्यूमुलेटर में ओपन के कोरस्पॉन्डिंग सपोज 21 ट्रांसफर हो गया, ठीक है, रीड के कोरस्पॉन्डिंग सपोज 22, राइट के कोरस्पॉन्डिंग 23, क्लोज के कोरस्पॉन्डिंग 24, इसको हम कहते हैं इंटरप्ट नंबर। इंटरप्ट नंबर मतलब हर सिस्टम कॉल का एक इंटरप्ट नंबर होगा, वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इसको स्विच कर देगा कर्नल मोड पे। मतलब ये आपका यूजर मोड में चल रहा है ना अभी प्रोसेस, तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ कि कुछ वैल्यू ट्रांसफर हुई एक्यूमुलेटर में corresponding to the system call, फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड इट स्विचेस द मोड ऑफ सीपीयू टू प्रिविलेज, मतलब उस फ्लैग को भी सेट कर देगा, सीपीयू का फ्लैग सेट कर देगा, प्रिविलेज कर देगा, एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू ओएस एट ए प्री डिफाइंड प्लेस, कंट्रोल भी ओएस के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरप्ट वेक्टर रूटीन, जो ओएस ये आपका ये मेमोरी है, ठीक है ना, ये यूजर प्रोसेस चल रहा था, ओपन आया है, इसमें कुछ वैल्यू ट्रांसफर हुई एक्यूमुलेटर में, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल इंटरप्ट वेक्टर रूटीन के पास चला गया और सीपीयू का मोड प्रिविलेज हो गया, ऑर्डिनरी से प्रिविलेज हो गया। अब इंटरप्ट वेक्टर रूटीन चेक करेगा कि ये इंटरप्ट क्यों आया है, तो वो देखेगा अच्छा ये इंटरप्ट एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सिस्टम कॉल्स को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी कहते हैं। System calls they are nothing but they are software interrupts, और गैल्विन में उसे ट्रैप भी कहा है। गैल्विन में सिस्टम कॉल्स को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या ट्रैप कहा है। हार्डवेयर इंटरप्ट अलग होता है, वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरप्ट ही है। आप देखोगे इसमें इंटरप्ट है ना नेक्स्ट टॉपिक। सर नेक्स्ट टॉपिक कल ले लें क्या प्लीज? क्या बेटा? नेक्स्ट सर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आप कल ले लीजिएगा। यस सर। हाँ मैं तो छोड़ ही रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बता के ही छोड़ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया तो आईवीआर के पास कंट्रोल गया, ओएस के लोअर पार्ट में कर्नल स्पेस में रहता है, ये कर्नल स्पेस है। अब ये देखेगा ये क्यों आया है इंटरप्ट, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, और ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स देखेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स देखेगा 21 है, मींस इट हैज टू एग्जीक्यूट द कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू ओपन। तो ओपन का कोड एग्जीक्यूट करेगा जो कर्नल स्पेस में है, और देन अगेन कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द नेक्स्ट लाइन इन यूजर स्पेस। तो इट इज जस्ट लाइक प्रोसीजर कॉल। डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर कॉल में कर्नल यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस स्विचिंग नहीं होता है, सिस्टम कॉल में यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस स्विचिंग होगा, सीपीयू का मोड चेंज होगा ऑर्डिनरी मोड से प्रिविलेज मोड, ठीक है, फिर अगेन सीपीयू का मोड ऑर्डिनरी मोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो in this way the system calls gets executed. This is about the execution of system call. You can see the session outcome. Session outcome में भी मैंने वही लिखा है,
सेशन आउटकम में क्या लिखा है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओएस, डुअल मोड सीपीयू ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल्स, फिर इंटरप्ट्स बाद में लेंगे एंड बूटिंग प्रोसेस। तो ये जो सेशन आउटकम है यही क्वेश्चन आएंगे। Distinguish between various operating system structures and types of operating system। तो ये सेशन आउटकम आपको होना चाहिए, मतलब ये हो गया यानी आपने लेक्चर अटेंड किया है। सेशन आउटकम, ठीक है। Okay, sir. फिर इसका सेशन आउटकम, इस ये नया जुड़ा है तो इसका सेशन आउटकम मैं नहीं लिख पाया, ये नया जुड़ा है, ठीक है। ठीक है चलो सर। आप लैब पर सुन लेना वीडियो, फिर बाद में अपन फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। ओके, थैंक यू।